अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करेंगे। जो माँ बाप है तो सभी खुश है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, ब्रेड ऑमलेट। मुझसे वेट नहीं हो रहा, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ब्रेड ऑमलेट, एग्स विद ब्रेड, क्विक सिंपल इजी एग रेसिपी कुकिंग। सो स्टार्ट करते हैं। பிரெட் ஆம்லெட் செம்மையா சமைக்கிறான், பயங்கரமா ருசிக்கிறான். இன்னைக்கு ஒரு புக்கே எல்லாரும் வாங்க. ஆல்வேஸ் வெல்கம்ஸ் யூ. நெருங்கடா பாப்போம் வைடா. பாட்டு நல்லா இருக்குது. நீ எழுதுறதா? அடுப்பு அப்படி எரியுதுடா. எடுத்துறோமா ரொட்டியை பிரெட்டை. அமைதி. சொல்லுங்க, அப்படி கொழுந்து கறிது தாத்தா. அடவு பார்த்துங்க, அப்படியே வர எடுத்துட்டு வரேன். ஆமா, கேமரா வர்ற வரைக்கும் இருக்காதுண்ணே, கறி பெரும்ண்ணே, எடுத்துருவோம். அவ்வளோதான், இவன் பற்றி பார்த்துக்குறோம். ஆல்ரெடி எல்லாமே பிரட்டியாச்சு. என்ன பிடிக்குது? பரட்டி விடு ரக்கன்னு. நீரம்பி ரோசா தள்ளுங்க சுடுங்க. பாய் இங்க பாருங்க. அழகா இருக்கேடா. அதிகம் முட்டை உடைக்கிறேன். ஆறாவது கூட்டை உடைச்சாவே போதும். நாங்கள் ஒன்றும் அடுத்து எடுத்து போட்டு ரெண்டாவது ஓய்க்கிட்டு இருக்கு. அதான் இதில் ஸ்கூலில் படிக்கணும், டீச்சர் சொல்லுவாங்க, நீங்களாம் படித்து முட்டை தான் வாங்குவாங்க. முட்டை வரும் முட்டை. நேரம் 4 உடச்சு முடிச்சிருப்பேன். அவர் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணி என்ன மரத்தில் போடலாம்ல. முட்டைக்கு கல்லுப்பு நல்லா கலக்கு. இப்படி சொல்ல போகவே மாட்டேன். அடுப்பை போடலாம்னே. பயங்கரமாக இருக்குது. வைசான் கட்டிக்காங்கம்மா. வெண்ணெய் வெண்ணெய் உடைச்சு ஊத்துன முட்டை. போதும். ஐநாக்கு தான் பயங்கர வேலை, எல்லாத்தையும் எடுத்து போடணும். அப்படி சொல்லிருப்பீன்னு நினைச்சீங்க. சுட்ட பிரெட்டு இருக்குங்கிற வரைக்கும் நான் எப்பறம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது. பொடியா நறுக்கின வெங்காயம். இங்க நாங்க ரெடியானதானே. பொடியா நறுக்கின தக்காளி. பொடியா நறுக்கின பச்சை மிளகாய். முணுக்கின மிளகுத்தூள். முணுக்கின கல்லுப்பு. வெண்ணெய் தகடு.
கதை கொடுத்து வாங்குங்க சரியா போச்சு அதுக்குதான் இந்த மாதிரி இருக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன் எனக்கு எல்லாம் ஓகே எனக்கு கொடுத்தான்னு பார்த்தா ஆட்டு கொண்டு போறானே என்ன 2 வேலை இருந்துச்சுன்னா குழம்பு வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா வெங்காயம் இருக்கு அதை எப்படிக்கே இதை போடுங்க உள்ள தள்ளி விடுங்க கணேச மாமா பெத்து விட்டுருக்காரு புள்ள உன்னைனா புள்ள எடுத்துருக்காங்களா எப்படிடா என்ன இந்த அவனும் வந்துடட்டும் சமைச்சல லேட்டு இந்த மாடு தொத்த மாடு போல கேட்டா நான் வந்து சிறப்பாக பண்றேன் பாரு மேனேஜ்மெண்ட் நாங்களே பண்ணிக்கணுமா பண்ணிக்க உனக்கு இங்க அடுப்பு எரியுதுனா டக்குன்னு தூக்கிரு நம்ம கரெக்டா ஒண்ணு பண்ண வேணாம் அதே மாதிரி தூக்கிரு ஆமா ராஜா மாதிரி பண்ணி நீ அருமைடா நீ சூப்பர்டா நீ எதுவுமே சொன்னதுலடா டேய் வரடா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்து செய்றேன்டா உனக்கு கூட சும்மா தூக்கிட்டு போற நீ மேனேஜ் பண்ணிடுவ என்ன அதுக்குல இருந்து வந்துட்டா அடுத்து தயாராயிட்டானா இல்லையா நீ என்ன தயாரா இல்ல இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கொண்டாங்க ஃபெயில் ஆயிட்டான் உனக்கு மட்டும் மறுபடியும் கொடுக்கணும்டா நீங்க ஃபர்ஸ்ட்லயே ஒழுங்கா கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு திங்கிறான் பாத்துட்டேன் இவனுக்கு ஒரு ஒரு கட்டையாளி வந்துட்டு கொண்டா ஐநா ஏங்க முட்டா மேல கொஞ்சம் இருடா உண்மையிலே பசி நேரத்துக்கு செம்மையான சாப்பாடுண்ணே பசுவம் பால் ஆக்க பொறுத்த ராசாவுக்கு ஆற பொறுக்கலையா ஆள் இல்லை அப்பா ஆம்லெட் பிடிக்காதவங்களே இருக்க முடியாது. அதுவும் அந்த ஆம்லெட்டுக்குள்ள பிரெட்டு நல்லா முட்டையை ஊற்றி வெண்ணெயிலே பொரிச்ச பிரெட்டை வச்சு அதில் பொடி பொடியாக அந்த வெங்காயம் தக்காளி சீஸ்லாம் எடுத்து வச்சு பிரெட் ஆம்லெட் செஞ்சு எடுத்து சாப்பிடும்போது நல்லா ஒரு பிடி பிடிச்சா. உண்மையிலே அந்த ஒரு பிரெட் ஆம்லெட்டு ஒரு ஆள் சாப்பிட முடியாது போல் அந்தளவுக்கு பெருசாக இருந்துச்சு. நல்லா சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு டம்ளர் பசுவம் பால் ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டதுக்கு வயிறு நல்லா கும்முன்னு இருக்குது. நல்லா பசியோடு இருக்கிறவங்க சிம்பிளாக இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா அவங்க வயிறு நல்லா நிறைஞ்சி சூப்பராக இருக்கும். எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிரெட் ஆம்லெட் இன்றைக்கி உண்மையில் வேறு லெவல். ஒரு புடி பிடிச்சாச்சு வேறு லெவல் தான். இது வந்து பிரெட் ஆம்லெட்டுமா, ரொட்டி மேலே ஆம்லெட்டு போட்டு ஒரு வாழைப்பழமும் இருக்குது. பார்த்து சும்மா பால்
வைக்கிறேன், சாப்பிட்டுட்டு எடுத்துக்கோங்க, சாப்பிட்டுட்டு குடிங்க. जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त. इस तरह से ब्रेड ऑमलेट हमने आज तक, मैंने देखा है, बनते नहीं देखा मैंने देखा है. कि यार पहले ब्रेड अंदर रखा जाता है फिर ऊपर उसके ऑमलेट लपेट दिया गया. नॉर्मली ऐसे ही बन रहा है आजकल. हाँ, वरना मैंने तो ये देखा है. तर्ज चेंज हो गया है, वो ब्रेड के अंदर ऑमलेट वाला तर्ज खत्म हो गया है वाकई. इसको ऐसे लगाते हैं और उसके बाद ऊपर से जो है ना इसको बिल्कुल कवर कर देते हैं ब्रेड को, और फिर उसको कट करके और फिर आप सॉसेस यानी ब्रेड आपके ऊपर, अंडा जो है के ऊपर अंडा होता है, उसकी लेयर होती है. सही है. और वो कैसे बनता है? वो भी इसी तरह बनता है. क्या सैंडविच सैंडविच ऑलमोस्ट है ना. लेकिन सैंडविच अब डिफरेंट टाइप के सैंडविचेस होते हैं ना, जैसे बेसन वाला होता है वो तो फ्राई होकर बनता है. अंडे अंडे भी होते हैं वाला सैंडविच ऐसे के ही अंदर. होता है. तो अंडे ये में, लेकिन सैंडविच में सेंटर में ही होता है अंडा. अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा शायद इनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन लग जाता होगा, 4-5-6 घंटे तो लगते होंगे बनाने में कोई भी डिश, कोई भी चीज़. इससे पहले हमने इनकी एक वीडियो देखी थी, बहुत ही जोश से बनाते हैं, बहुत ही जज्बे के साथ बनाते हैं. मुझे पूछना था कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब इतना मलयालम मुझे लग रही है. मलयालम या फिर मुझे ऐसा लग रहा है तमिल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था एक वर्ड मुझे नहीं पल्ले पड़ा, ये समझ आया, लेकिन वो बोलने का स्टाइल और इतना शीर, उनका एक लहजा एक्सेंट है कि दिल कर रहा था सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ. मुझे पहली बात तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि तमिल थी या मलयालम थी. दूसरी बात ये, यहाँ जहाँ पे ये कुकिंग करते हैं वो जगह आपने देखी कितनी हरी भरी, खुशनुमा, शादाब और इतनी तरोताज़ा वो जगह कि मैं हैरान होती हूँ कि हत्ता कि जब कुकिंग हो रही होती है और उसमें से जो धुआं निकलता है, नॉर्मली हमारे घरों में हम चूल्हे वगैरह पे कोई चीज़ बनाते हैं और धुआं निकलता है तो बाकायदा हमें दिखता है कि वो धुआं निकल रहा है. आप देखना कि ये कुकिंग करते हैं तो इनका धुआं तक नहीं दिखता, एवोपरेट हो जाता है, क्या हो जाता है, या वो जगह इतनी शादाब है या इतनी खुली हुई है या वहाँ का एक तरीके से इन्वायरमेंट इतना क्लियर है कि वहाँ पे बिल्कुल आपको स्मोक ही नहीं दिखता. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, सबसे पहले तो जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब कोशिश इनकी ये होती है कि नेचुरल चीज़ों से बनाया जाए. सबसे पहले आग इन्होंने नेचुरल लगाई हुई होती है, ठीक है ना. आपने काली मिर्च पीसने का तरीका देखा, मतलब किस तरीके से वो एक वो था. हमारे यहाँ काली मिर्च कैसे पीसते हैं? हमारे यहाँ तो वो बॉटल होती है ना, उसके अंदर डाल दें और मतलब हम आर्टिफिशियल पे चले गए तो ये देसी तरीके से. हालांकि ये भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस पे ना मतलब एक अच्छा लग रहा होता है, देख के भी अच्छा लग रहा होता है. लोग, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अगर किसी भी, अक्सर चाइनीज़ जो होता है ना, जैसे पास्ता वगैरह बनाते हैं तो उसमें काली मिर्च ऊपर से आपको हल्की सी छिड़कनी होती है, तो मैंने उनको देखा है वो ब्लेंडर में पीस रहे होते हैं. मतलब आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि सिल और बट्टा यूज़ करेंगे, है ना. हाँ, जबकि आप सही कह रहे हैं कि इन चीज़ों से, अच्छा बड़े बूढ़े जो हमारे बुजुर्ग हैं वो तो ये कहते थे टेस्ट ही नहीं आता. अगर आप मशीनरी यूज़ कर लो, आप ब्लेंडर्स यूज़ कर लो, आप चॉपर्स यूज़ कर लो ना, कुछ भी पीसने के लिए, मसाला जात पीसने के लिए, तो आप समझिए वो मसाले का टेस्ट गुम हो जाता है, खो देते हैं आप. हो सकता है, ठीक है. और हाथ से आप जब पीसते हो सिल और बट्टे पे तो उसका एक अलग ही स्वाद होता है. बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आर्टिफिशियल चीज़ों से फिर उसकी असल चीज़ वो निकल जाती होगी, कोई ना कोई चक्कर होगा. अच्छा, वो बहुत बुरादा बना देता है. और कहते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में भी टेस्ट आता है, दूसरे बर्तनों में इतना नहीं आता. अच्छा, एक चीज़ ये समझ से बाहर है कि मतलब ये एक तरह से ओल्ड एज होम वालों के लिए बनाते हैं और उसकी वीडियो बनती है, ठीक है ना. अच्छा, मतलब कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ लाखों ओल्ड एज होम होंगे 100% होंगे. अच्छा, होगा क्या कि उनका खाना भी बनता होगा, मैस में बनता होगा, ठीक है ना, लेकिन वो बन के यूज़ हो जाता है. लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट देखें कि उसकी अच्छे तरीके से पिक्चराइजेशन हुई है. इसको देखकर, इस वीडियो को देख के फिर उनको खाना देखो, आपके सामने अगर कोई चीज़ बन रही है फिर वही किसी गरीब के मुंह में जा रही है, यकीन करें आप उससे अटैच हो जाते हैं, आप उससे साथ जुड़ जाते हैं. अच्छा, ऑटोमेटिकली लोगों का दिल करेगा कि यार मेरा जेब से भी गया हुआ ये लोग खाएं, इनके पास डोनेशन देने का दिल करेगा. तो मैं कहूँगा, अच्छा दूसरी चीज़ है कि यूट्यूब से तो अलग अर्निंग होगी और वो भी मेरे ख्याल में इसी डोनेशन में जा रही होंगी. ये एक इदारा है जो बाकायदा इन लोगों के लिए खाना वगैरह मुझे लगता है, ठीक है ना, उनके समझो उनसे मुंसलिक लोग हैं. तो मैं माइंड देख रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत तरीक़ेकार है इनका, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खुशी से, जज्बे से बनाने के बाद खिलाते हैं.
जब इन गरीबों को खाना खिला रहे होते तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है, आपको बड़ी पता है, खुशी हो रही होती है। ऐसी जगहों के लिए सबसे ज़्यादा हमें यही डाउट होता है, यार कैसे बनता होगा। आपको मैं पता नहीं बनता है, पता नहीं उन तक बहुत जाता है सर। हैरत ये इस बात बताऊंगी कि हमारे यहाँ मज़ारात है, तो वहाँ पे खाना बना करता है, तो हमारे करीब ही एक मज़ार पड़ता है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं ना, खाना बनता था, मतलब बिरयानी बना करती थी, हर जुम्मे को बिरयानी बना करती थी। तो जब से चीज़ें महंगी हुई ना, उन्होंने बिरयानी बनाना बंद कर दिया। अच्छा, राइस महंगा हो गया है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अब तो बिरयानी होती थी, बिरयानी नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, राइस महंगा हो गया है, और क्या कहते हैं मसाला जात भी बहुत महंगे हो गए। तो अब हमने ना चने की दाल बनाना शुरू कर दी। चने की दाल सालन वाली नहीं होती है, जो सही, सालन सही, सही, बनाकर सही, और चने सही, की दाल डालते हैं, वो और तंदूर की रोटी, सही अब वो देना शुरू कर दिया। तो मैं ये सोचने लग गई, मैंने ये सोचा, अल्लाह की राह में लोगों के यहाँ कम पड़ गया, देना कम पड़ गया। बिल्कुल। मतलब आप बिरयानी से चने की दाल पे आ गए। मैं बोलूँगी कितने लोग होंगे जो डोनेशन करते होंगे, देते होंगे। एक अच्छा बड़ा मज़ार है और वहाँ पे समझे कई देगें बनती हैं, और अल्लाह की राह में देने के लिए कम पड़ गया। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी देखी है, पता नहीं यूँ मैंने नोट किया है, मैं सही भी हो सकती हूँ, गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं बोल सकती हूँ, इनकी मान्यताएं, इनकी अकीदत या इनका मजहब अगर आ जाता है ना, कि इनका मुल्क आ जाता है, मैंने देखा है ये पैसे की कदर नहीं करते। बिल्कुल ऐसा पैसा इनके लिए पानी है, बिल्कुल पैसा ऐसे ही। एक समझे कागज़ का टुकड़ा है, उसकी वर्थ ही नहीं है अगर ये देने पे आ जाए। और हमारे यहाँ मैंने देखा हमारा मज़हब भी आ जाए, हमारा मुल्क भी आ जाए, लेकिन हम अपनी सेल्फ को प्रायोरिटी देते हैं कि हमारे लिए बच जाए, हमारे लिए हो जाए, हमारी सारी ज़रूरियात अच्छे से अच्छी पूरी हो जाए। उसके बाद अगर 10 रुपये बच रहे हैं तो मैं दे दूँगी, अगर 5 रुपये बच रहे हैं तो मैं दे दूँगी, उससे पहले मैं अपने मज़हब के लिए, अपने मुल्क के लिए नहीं निकालूंगी। ऐसा ही है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस। अच्छा, दूसरी चीज़ है, लोगों को किसको दें ये एक बड़ा इशू है। एक लोगों को भरोसा भी नहीं है, और दूसरी चीज़ है कि लोगों ने ना बिज़नेस बनाया हुआ है NGOs को। इस तरह के इदारे खोल के, आपने कहीं हमारे पास चैनल वाले एंकर वगैरह घुस जाते हैं इदारों में, बाकायदा इस तरह के ख़वातीन के इदारे, बाकायदा वहाँ ख़वातीन परेशान, वो कह रही है मेरी छोटी बेटियाँ मुझसे छीन ली गई, हमें ज़बरदस्ती गलत काम के लिए बोला जाता है, हमें ये बोला जाता है। इदारे हैं जहाँ पे ख़वातीन को रखा गया है बेसहारा, वो ख़वातीन टूट पड़ी एंकर पे, वो रोना पीटना शुरू कर दिया, बोला यहाँ हम सेफ़ नहीं हैं, यहाँ हमारी मजबूरी है रहना। यानी वो वेलफेयर की आड़ में कुछ और कर। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जब एक ठप्पा आ जाता है ना वेलफेयर का, तो आप पे बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये देखा मैंने, जब बहुत हेल्दी लग रहा था देखकर, और इतना साफ सुथरा, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से, मेरा दिल कर रहा था यार काश मैं भी खा पाती। नहीं, आपका दिल कर रहा था? इतने साफ सुथरे तरीके से, मुझे ऐसा लगता है नहीं, इनका ये जो पहला वाला हमने देखा था तो वहीं से अंदाजा लगा लिया था कि बहुत डिसेंट तरीके से, बहुत साफ यूज़ कर रहे हैं, बहुत तरीके से फ्राई पैन यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ बड़ा साफ, बड़ा ही ऐसा लग रहा था। और खुद भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी के लिए बना रहे हैं, जैसे तैसे बन जाए, पाँव से रोंद कर। हमारे यहाँ तो पाँव से रोंद कर बना देते हैं, लोगों को खाना है, हमें थोड़ी खाना है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जज्बे के साथ। और मैंने किसी का कमेंट आया था कि बाकायदा इनको फिल्म में भी लिया गया है। अच्छा, पता नहीं किस तरीके से लिया गया है, कौन सी फिल्म का नाम है, आप हमें कमेंट करें। बाकायदा साउथ इंडिया की कोई फिल्म में भी ये सब लोग आए हैं, इसी तरह शायद इसी तरह सीन बनाया गया है, क्या किया गया ये देखेंगे हम। बहुत अच्छा लगता है इनको। तो दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।